विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भुविष्टान्ते नम उक्तिं विधेम। वैश्वानरमहं वन्दे वैश्वानरसुतौ तथा वैश्वानरकुले जातान् सर्वान् वैश्वानरप्रभान्। शिव श्री गुसाई जी परम दयाल की। બિરાજમાન શ્રી વલ્લભકુલ પરિવારને અમારા દંડવત પ્રણામ અને સર્વ વલ્લભીય વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ। આપણા આચાર્ય શ્રી જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના 540મા જન્મદિવસની મંગલ બધાઈ। આપણા આચાર્ય ચરણ નાની વયમાં કેવી વિકટ સમસ્યામાં હિન્દુઓ પર આવેલા સંકટ દૂર કર્યા અને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગને પ્રગટ કર્યો। मायावादियों तथा इतर मत ने वाद में हरावी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना करी। भक्तिनो डंको आखी दुनिया में केवी रीते वगाड़्यो ए यशोगाथा आप सौने प्रकट करी रह्या छे। पाठशालाना बाळको भक्तिना डंका गीत द्वारा। भक्ति का डंका भारत में बजवाया श्री महाप्रभु जी ने। पुष्टि का डंका आलम में कराया श्री महाप्रभु जी ने। पुष्टि का डंका आलम में कराया श्री महाप्रभु जी ने।
વર્ષોથી બાળકોના વક્તવ્ય, આચાર્ય બાળકોના વચનામૃત તથા પ્રભુની લીલાઓના દર્શન કરીને વિચાર આવે છે કે ક્યાં સર્વશ્રેષ્ઠ પુષ્ટિમાર્ગ અને ક્યાં આજના વૈષ્ણવની સ્થિતિ. આજે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવો પ્રવાહી સૃષ્ટિને અનુસરતા થઈ ગયા છે. આજકાલ આપણે ધર્મ પ્રત્યેની ફરજ ભૂલીને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ તરફ ખૂબ જ ઝડપથી વધી ગયા છીએ. તે વેસ્ટર્ન કલ્ચરની હોડમાં આપણી વૈષ્ણવતા શિથિલ થઈ ગઈ છે. આપણામાં પુનઃ વૈષ્ણવતાને જાગૃત કરવા માટે આપણા પાઠશાલાના બાળકો સૌ મળીને એક કોશિશ કરી રહ્યા છે વૈષ્ણવતાને જગાવવાની. તો તાળી સાથે વધાવીએ એમના આ પ્રયત્નને શ્રી પ્રથમેશજી મહારાજજી દ્વારા રચિત જાગરણ ગીત દ્વારા. Manavata
સિદ્ધિ વાછાણી, જે ગત 3 વર્ષથી પાઠશાલામાં અભ્યાસ કરે છે, પોતાના મનોભાવ વ્યક્ત કરવા ઈચ્છે છે. બાળકોના આટલા સુંદર પ્રયાસોથી ખુશ થઈને પોતાના મનની વાત કયા વિના એ રહી શકતી નથી. તો આપણે ખૂબ તાળીઓથી આવકારીએ સિદ્ધિ વાછાણી અને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટ્ય ઉત્સવની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ વધાઈ. પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોવિંદરાયજી મહોદયની શિષ્ય તથા આ બાળબોધની પાઠશાલાની વિદ્યાર્થીની હું સિદ્ધિ વાછાણી આજે આપને હું મારા પોતાના મનોભાવ મારા વક્તવ્યમાં રજૂ કરીશ. આપણી હવેલીમાં ચાલી રહેલી પાઠશાલા એ મારા સંસ્કાર ઘડતરનું એક કેન્દ્ર છે અને આ હવેલી એ મારું ગુરુઘર છે. પરંતુ વૈષ્ણવો એવું નહીં કહેતા અહીંયા આવતા દરેક વૈષ્ણવનું ગુરુઘર છે, કેમ કે ઘણા વૈષ્ણવો એવું માને છે કે જ્યાં આપને બ્રહ્મસંબંધ દીક્ષા લીધી હોય એ જ આપણું ગુરુઘર કહેવાય. પરંતુ જે સાનિધ્યમાં આપને જ્ઞાન મળતું હોય, સંસ્કાર મળતા હોય એ આપણું ગુરુઘર જ કહેવાય. અમે આ પાઠશાલામાં છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયા છીએ તો આ ઘર સાથે અમારી એટલી આત્મીયતા જોડાઈ ગઈ છે કે ઊંઘમાં પણ આ પાઠશાલા છોડવાનો વિચાર આવે તો અંદરથી દુઃખ થવા લાગે છે અને તરત જ પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે આ સમય મારો આપ કદી ન આપજો. જો છતાં પણ સમય અનુસાર આ પાઠશાલા છોડવી પડે તો પણ આત્મીયતાનો સંબંધ તો બિલકુલ નહીં આ ઘરને તો બિલકુલ નહીં ભૂલીએ. તો મારા પાઠશાલાના ભૂતકાળના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને મારે એ જ મનોભાવ કહેવા છે કે આપ ભલે રેગ્યુલર પાઠશાળા નથી આવી શકતા તો પણ તમે આ ભક્તિ સેતુ હવેલી પરિવારના અને આ બાળબોધની પાઠશાલાના એક અંગ છો. તો રોજ નહીં પહોંચાય તો શનિવાર, રવિવાર, કોઈ સારા દિવસો જેમ કે આપણો જન્મદિવસ, કોઈ ઉત્સવોમાં જરૂર આપણા ગુરુ ઘરે આવીએ અને આપણા વૈષ્ણવી ચિહ્નોમાં જ આવીએ અને આપણા ગુરુને મળીએ, દંડવત ચરણ સ્પર્શ કરીએ. અરે મિત્રો, ફક્ત આટલું જ કરતા તમે તમારા ગુરુ સામે ભાવભરી દ્રષ્ટિથી તો જોજો. તમને ગુરુ પ્રેમ છે એમના કરતા પણ અનેક ગણો શિષ્ય પ્રેમ દેખાશે, જેમની પાસેથી આપને જીવન ઘડતર માટે પાયારૂપ સંસ્કાર મળ્યા છે. શ્રી ઠાકોરજી સાથેનો સંબંધ થયો છે અને પૂજ્ય શ્રી બહુજી પાસેથી જે મમતા રૂપી પ્રેમ મળ્યો છે એને કેવી રીતે ભૂલાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્યારેક એકાંતમાં બેસીને બહુજી શ્રી તથા દરેક ટીચર્સ દ્વારા મળેલા પ્રેમને યાદ તો કરજો અને તમારા અંદર હંમેશા એક વૈષ્ણવતાને જાગૃત રાખજો. અરે આપે ભલે આ પાઠશાલા સમય અનુસાર છોડવી પડે તો પણ આત્મીયતાનો સંબંધ તો બિલકુલ નહીં છોડીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જ આપણે જે અને બહુજીશ્રીને વચન આપીએ કે અમે આપની આજ્ઞા અમારા માટે સર્વોપરી છે અને અમે આપના જ બાળકો છીએ અને હંમેશા આપના જ બનીને રહેશું. આપની સેવા માટે સતત હાજર રહેશું. તો બોલો, તમે આ વચન આપવા માટે તૈયાર છો ને? તો આ સાથે હું મારી વાણીને મારા ગુરુ ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાળુ છે. આપણે ખૂબ તાળીઓથી આવકારીએ સિદ્ધિ વાછાણીને. પૂજ્ય આચાર્ય બાળકોને વિનંતી કરીશ કે આજના મંગલ દિવસે આપના આશીર્વચનથી અમને લાભાન્વિત કરે. श्री गोपीजन वल्लभाय नमः. श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः. श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. करेण स्वीयानां हृदयमिव हय्यंग वल्लभं प्रधान संप्रेडन अमृत मधुरैर्बालचरितैः असंकल्पै दन्तै कर चरण जान वंचन परः शिशुः कृष्णोऽस्माकं दशतु दशमीशस्वया बालन क्रीडन कानि हस्तकमले नादाय नन्दाङ्गणे नृत्यं गोपनिकम्बनीषु मनसां हरताप्यसौ वञ्चितः दास्यामो मृदुमोदकानि भवते नृत्येन नृत्योत्सुकः चित्ते क्रीडतु नन्द गोपतनयः श्रीबालकृष्ण प्रभु नीलाश्मत्युतिशैलचारूपुषं प्रालेय शैलच्छविं वामे पाणितले सुलाङ्गलधरं वामे तले लौकिकं धृत्वा सन्मुसलं भुवं विजयते यो रेवतीश प्रभु
ध्यायेतं बलमीश्वरं शुभमतिं नित्यं चतुर्वर्गतम् यामाराध्य नरो निमज्जति कराम् आनंद सिंधौ सुधा यां प्रेक्ष्यामि नरस्य नैव पतनं संसार सिंधौ क्वचित् यामानम्य नरोद रोदति भवे भावे निमग्नो भवेत् तां श्रीमद् बलराम पाद निरतां सेवस्य भो रेवती मायावाद तमो निरासन पटु श्री लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेश संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्री वल्लभार्य प्रभु न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त उपस्थित पूज्य चरण आदरणीय अम्मा जी, नानी जी, मातृ चरण, घर के जनाना द्वय, चिरंजीव आयुष्मान दोनों राजा तथा उपस्थित समस्त बाल्लभीय पुष्टिमार्गीय परम भगवदीय प्रिय भगवत भक्त मंडली, आप सभी को आचार्य आसन से, आचार्य पीठ से आचार्य चरण के 540वें प्राकट्य महामहोत्सव की हार्दिक बधाई। महाभारत में एक अति प्रसिद्ध वाक्य है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। आप धर्म की यदि रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप धर्म का नाश करोगे तो वही धर्म आपका भी नाश कर देगा। धर्म का जो संबंध जीव के साथ है वो परस्पर है। आपने देखा होगा कि समाज में भी हर संबंध परस्पर ही होता है। अगर आप किसी से रखोगे तो वो उतना आपसे रखेगा। आप धीरे धीरे संबंध कम कर दोगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपसे संबंध कम कर देगा। हमारे यहाँ कहा गया है, धर्मे नास्ति भयम क्वचित। धर्म को कभी कोई भय नहीं होता। आपको दृष्टांत के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं। जब मैं धर्माचार्यों को देखता हूं, कतिपय अन्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार में संलग्न, अच्छे कार्यों में संलग्न धर्माचार्यों को देखता हूं, तो एक उन्हीं में से एक होने के नाते मुझे एक चीज देख के बड़ा डर लगता है। आपने भी मार्क किया होगा, टीवी चैनलों पे जितने भी धर्म गुरु आते हैं, अलग अलग धर्मों के, जरूरी नहीं है कि सनातन धर्म के ही हों, इतर भी धर्मों के आप धर्म गुरुओं को देखोगे तो कभी कभी हम देखते हैं कि उनके पीछे गनमैन खड़े होते हैं। धर्माचार्यों के पीछे 2 आदमी बंदूक लेके खड़े होते हैं। अरे जब दैवी संपदा का भगवान भगवत गीता में वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम, यदि व्यक्ति धार्मिक है, यदि व्यक्ति धर्म प्राण जीवन जीता है और धर्म की बात करता है, तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति को भय किस बात को। और जब एक धर्माचार्य पीछे गनमैन लेके खड़ा हो, आप देखो अभी अपने यहाँ अपन छड़ी पुकार करते हैं, अपने आचार्यों के सामने क्या रहता है साथ में? रक्षार्थ कहो, डिग्निटी के हिसाब से कहो, एक स्वरूप के हिसाब से कहो तो भी सोने की छड़ी, रुपए की मशाल। आज चांदी और सोना की छड़ी लेके हमारे छड़ीदार, झापटिया वर्ग आचार्यों के आगे रक्षार्थ चलते हैं। वो एक प्रकार की मैन है, वो एक प्रकार की आड़ है कि धर्म को एक आड़ और एक मैन की फिर भी आवश्यकता होती है, लेकिन शस्त्रधारियों की आवश्यकता क्यों धर्म को पड़ती है? ऐसा कहा गया है कि नदी नाम च नखी नाम च श्रृंगीणाम शस्त्रपाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। नीति कहती है नदी का, नख वाले प्राणियों का, सींग वाले प्राणियों का, शस्त्रधारी किसी आदमी का, चालाक स्त्रियों का, राजपुरुषों का, पॉलिटिकल पीपल,
ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, इन लोगों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नीति कहती है इनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसमें भी शस्त्रधारी है, कब शस्त्र चला देगा आपको पता ही। उसका दिमाग फिरा और उसने प्रहार कर दिया। तो आज धर्माचार्य यदि निर्भय हैं, यदि इस धर्म प्राण देश में, भले संविधान अभी निर्धर्मक हो, संविधान भले प्रजातांत्रिक पद्धति से चलता हो, संविधान धर्म निरपेक्ष हो, तो भी आप देखोगे कि हमारा हर आस्तिक भारतीय मनुष्य धर्म सापेक्ष ही है। हर व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो अपने कोई न कोई इष्ट को नमस्कार करके घर से निकलता है, अपने आत्मीय जनों से भगवत स्मरण करके निकलता है। पहले जमाने में लोग अपने वही खाता लिखते थे तो चौपड़ा पूजन करते थे। चौपड़ा पूजन करने में से धीरे धीरे चौपड़ाओं का क्रम चला गया और लोग कंप्यूटर पे अपनी सब ऑडिट करने लगे। तो आज भी आप देखोगे कि छोटे छोटे गणपति और छोटे छोटे स्वस्तिक लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी बनाते हैं। वो अपने लैपटॉप के स्क्रीन सेवर में, वॉलपेपर में भी अपने भगवान का, अपने इष्ट का फोटो रखते हैं। क्यों? हर व्यक्ति के अंदर धर्म जीवंत है, हर व्यक्ति के अंदर धर्म उसका सहज मानवीय गुण है। नीति में आता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मस्य एको गुणो विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अगर मानव में से धर्म चला जाए, मानव धर्म चला जाए, तो उसका जीवन और एक पशु के जीवन में कोई बहुत फर्क नहीं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन आदि जितने पशु करते हैं उतना ही हम करते हैं, हम उनसे अच्छा कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि जो धार्मिक है और जो धर्म को जीता है, धर्म का उपदेश करता है, जो धर्म का प्रचारक, उपदेश का धर्म गुरु है, यदि वो खुद पीछे तो शस्त्रधारियों को लेकर चलता हो आत्मरक्षा के लिए, तो वो समाज को निर्भय रहने का, समाज को धर्म को जीने का उपदेश कैसे करता होगा, किस प्राण से वो बोल पाता होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आज यहाँ धर्माचार्यों की निंदा करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताने बैठा हूँ कि आज अपनी सभा शुरू हुई तो श्रीमद आचार्य चरण जो आज अपने उत्सव नायक है, उनके बहुत से गुण गाए गए। आप उनके विषय में सुनो तो महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमा में कौन से शस्त्रधारियों को साथ में लेके परिक्रमा की? आपके साथ निज सेवक और लठ वाले जो चलते थे, छड़ीदार, वो लठ वाले छड़ीदार क्यों चलते थे? पशुओं से रक्षा करने। महाप्रभु जी जंगलों में आप विचरण करते और महाअरण्यों में से आप गुजरते हुए घाटीय पर्वतीय स्थानों में, नदी और हृदय और सरोवरों के आसपास ही आप विराजते, तो वन्य जीव जंतु और पशु पक्षियों से रक्षा के लिए शस्त्रधारी चलते थे और वो शस्त्रधारी लठधारी होते थे। और आगे से आगे जब राजा कृष्णदेव राय या राजा रामभद्र जब सेना भेजते भी थे गांवों के बाहर तक आपको पधराने के, छोड़ने के लिए, तो एक हद के बाद श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि अब तुम जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। और स्वभु, स्वयंभू, शंभु भट्ट, लकुटालोकी, वेत्रभृत वीर, इन सबों के नाम भी वल्लभ दिग्विजय में वेत्रभृत वीर है। वेत्रभृत वीर मतलब हाथ में छड़ी लेके चलते थे, ये कभी शस्त्र धारण नहीं करते। आज शस्त्रधारी धर्माचार्य एक आतंकवादी से कम नहीं। उसको किससे भय है? यदि उसका इष्ट सबल है, वो अपने धर्म में प्रबल है, और अगर उसकी वाणी में से वो ओज सत्य के साथ प्रकट होता है जिससे जन कल्याण होने वाला हो, मानव कल्याण होने वाला हो, तो उनको शस्त्रों की क्या आवश्यकता? मैं तो कहता हूं आचार्यों को सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या आवश्यकता है? आप तो खुद सिक्योर रहने चाहिए, खुद आपका मन ऐसा रहना चाहिए कि बस प्रभु विराज रहे हैं, प्रभु मेरा सब हित करेंगे। आज जिन मानव मूल्यों के श्रेष्ठतम आदर्श का उपदेश पुष्टि मार्ग करता है, उनको हम विवेक, धैर्य और आश्रय के नाम से जानते हैं। ये विवेक, धैर्य और आश्रय में भगवान का जो आश्रय है, एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वदा सुखदायकम सर्वेषां
सुखदायकम। महाप्रभु जी कहते हैं सबको सुख देने वाली वस्तु है भगवत आश्रय। महाप्रभु जी ने अपने प्रादुर्भाव से लेकर और श्री महाप्रभु जी ने अपने सदैव लीला तिरोधान तक व्यक्ति को एक ही उपदेश दिया, भगवत सन्मुखता बनाए रखो, भगवत सन्मुख रहो, भगवत लीला की चर्चा करो, भगवत स्वरूप का चिंतन करो, भगवत सेवा करो। और जिन लोगों को वर्णाश्रम धर्म का आग्रह नहीं था उनको श्री महाप्रभु जी ने, आप स्वयं वेद पारग हैं तो आपने उपदेश किया कि यावत देहानुसंधानम तावद वर्णाश्रम धर्माः अनुकरणीया। जब तक तुम्हारे को देहानुसंधान रहता है, जब तक भूख प्यास निद्रा क्षुधा पिपासा तृष्णा गर्मी लगना सर्दी लगना वात आदि से अपन को कष्ट महसूस होता है, जब तक हमको कोई भी प्रकार का देह धर्म बाधा करता है तब तक हमको वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं करना है। आज वर्ण और आश्रम धर्म की व्यवस्था आज के सांविधानिक सामाजिक परिस्थिति में नष्ट प्राय ही है। आज सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति हीन दृष्टि से देखा जाता हो तो जो एक काल में सबसे ज्यादा पूज्य रूप में देखा जाता था आज वो ब्राह्मण है। आज ब्राह्मण की कोई इज्जत नहीं है समाज में। समाज में धनिक वर्ग, साहूकार वर्ग, वणिक वर्ग, धनाढ्य वर्ग वो यही चीज मानते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम धन दे सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा प्राचीन काल में भागवत में तो असंख्य स्थानों पे हे भूमि देवा, ब्राह्मणों को संबोधित करने के समय कहा गया आप तो भूमि में देव रूप हो। देव तो प्रत्यक्ष दर्शन देते नहीं पर ब्राह्मण तो दिखते हैं। आज ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए अपन क्या काम कर रहे हैं? आज ब्राह्मणों के पोषण के लिए अपन क्या काम कर रहे हैं? आज अपन ब्राह्मण को एक दक्षिणा देते हैं। आपका बैंड बाजा वाला, आपका घोड़ी वाला ज्यादा रुपया ले जाता होगा, आपकी शादी पढ़ने वाला ब्राह्मण उतना प्राप्त नहीं कर पाता होगा। आपने ब्राह्मण को इतना गौण मान रखा है। आपसे मेरा तात्पर्य पूरे समाज से, पूरे समाज ने ब्राह्मण को ऐसा देख रखा है कि जैसे लोग हर चीज में बार्गेन करते हैं वैसे आज लोग ब्राह्मणों से भी बार्गेन करते हैं कि तू कितने कम पैसे में शादी करवा देगा, तू कितने कम समय में शादी करवा देगा, तू कितने कम से कम मंत्रों में शादी करवा देगा। और केवल शादी की नहीं तुम्हारी उत्तर क्रिया की भी यही परिस्थिति है। और जब और्ध्वदैहिक कर्म जब बराबर नहीं होते तो वही समाज धर्माचार्यों के पास पत्रिका जन्माक्षर लेके आता है, मने पितृदोष है, ज्योतिष कहो मने पितृदोष है। तो पिता तो पीटेगा ही, तुमने बराबर दिया ही क्या उसको? न पत्नी का वर्ण बराबर किया, न पिता को तर्पण बराबर किया। और वो क्यों नहीं किया? ब्राह्मण का मन ही नहीं हुआ तुम्हारे लिए 4 मंत्र स्वेच्छा से बोलेंगे, क्योंकि मंत्र तो वो तब निकलेंगे जब उसको दक्षिणा का संतोष होगा। आज संतोषप्रद दक्षिणा ब्राह्मणों को नहीं रही। आज संतोषप्रद दक्षिणा के अभाव में ब्राह्मण खुद कामचोर हो गए। समाज ने उनको भी कामचोर कर दिया। वो अपना काम बराबर आज नहीं करते। ब्राह्मण भोजन करने जाते हैं लेकिन वो श्राद्ध विधि से परिचित नहीं होते। ब्राह्मण अपने खुद के कार्य को बराबर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रारंभिक समय से उस प्रकार का पोषण अपने समाज से नहीं दिया जा रहा। और ये सनातन भारतीय समाज के लिए मैं कह रहा हूं, केवल पुष्टि मार्गियों के लिए नहीं कह रहा हूं। हम पुष्टि मार्गीय लोग तो फिर भी अपने घर आने वाले चौबा पंडा, अपने तीर्थ पुरोहितों को, अपने गौर बाबा को इतर लोगों से अच्छा ही रखते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए अपने यहाँ के समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं धर्माचार्य की दृष्टि से एक धार्मिक जगत के अर्थ में ही कह रहा हूँ कि आज धार्मिक जगत में बहुत शिथिलता आ रही है। देखो शास्त्रों में कहा गया है वेदो वृक्षः मूलकान्यत्र विप्राः, विप्र मतलब ब्राह्मण, जो वेदान अधीयते स विप्रः, जो वेदों को पढ़ते हैं वेदों को पढ़ाते हैं उनको हम विप्र कहते हैं। जो वेदान अधीयते स विप्रः, वेदो वृक्ष, वेद तो पूरा कल्म वृक्ष है। वेद से जो मांगो कि वेद आपको देंगे। सकाम
निष्काम, काम्य, नैमित्तिक, नित्य, बड़े बहुत प्रकार के कर्मों से वेद भरे हुए हैं। त्रैविद्या सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अष्टंति देवान दिवि देव भोगान। तो गीता जी में भगवान कहते हैं कि त्रैविद्या ऋक् यजुर और साम कांडत्रयात्मक वेद का अध्ययन करके वेदों के हिसाब से जीवन को जी के व्यक्ति स्वर्ग पर्यंत अपने सारे उत्तम मार्ग स्वयं स्थिर कर लेता है और वो देवताओं के भोगों को भोगता है जो केवल देवलोक में देवताओं को ही प्राप्त है, उनको भी मानव प्राप्त कर लेता है। और केवल भक्ति से ही नहीं, कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। भगवान दृष्टांत देते हुए कहते हैं गीता में कि अरे राजर्षि जनक जैसों को देखो, इनने तो केवल कर्म मार्ग में स्थित होके कर्म मात्र से ही संसिद्धि प्राप्त कर ली। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया। भगवान ने तो व्यक्ति के कल्याण के 3 मार्ग बनाए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और इन कर्म, ज्ञान, भक्ति, इनमें निष्काम भाव से विचरण करने के बाद इन मार्गों पे व्यक्ति को उत्तम गति ही प्राप्त होती है। तो वेदों का तो जो भी आश्रय लेगा, वैदिक मत से जो भी जीवन जिएगा और वेद वेदांत प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण का जो भी सेवन करेगा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ वेदों में है वो जानने योग्य पदार्थ नहीं हो। आज हम उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और आचार्य चरण भी इस चीज का समर्थन करते हैं कि वेदो वृक्षा मूल कान्यत्र विप्रा अंगा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। वेद की जितने भी अंग हैं वो उसकी शाखाएं हैं। वेद के अंग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 वेदांग माने जाते हैं। ये षडांग वेदों में से षट धर्म प्रकट होते हैं। उन षट धर्मों को अपन कहते हैं शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य और स्कांद। 6 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं। इन 6 प्रकार के धर्मों को जीने के लिए 6 प्रकार के दर्शन, फिलॉसफीज बनती हैं, जिनको हम कहते हैं योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन्हीं के आचार्य बनते हैं, इन्हीं के दर्शन शास्त्री होते हैं। दर्शन शास्त्रियों के बाद आचार्य होते हैं, सूत्राचार्य होते हैं। ये लोग सब विप्र होते हैं। ये वेदों का अध्ययन करके कोई वेद में से कोई सिद्धांत निकालता है, कोई वेद में से कोई सिद्धांत निकालता है। हर संप्रदाय इस प्रयत्न में लगा रहता है कि हमारा दर्शन, हमारा धर्म वेद मूलक हो, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्मस्तद विपर्ययः। यदि वेद से बाहर कुछ है तो वो सब अधर्म है, और जो धर्म का मूल है वो वैदिक संस्कृति ही है। और इस वैदिक संस्कृति का रक्षण करते हैं ब्राह्मण। वेदो वृक्ष मूल कान्यत्र विप्रा अंगा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। आप जितना भी धर्म कर्म कर रहे हैं ये तो उस वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, पत्ते। और तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीय। कहता है आगे शास्त्र के, इसलिए जो मूल है, जो रूट्स हैं, जो जड़ है वेद रूपी वृक्ष की, ब्राह्मण, उसके ब्राह्मणत्व का रक्षण अतिशय मूल के साथ करो, तत्परता के साथ करो, क्योंकि छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। लेकिन अगर मूल ही नहीं रहा तो फिर न शाखाएं टिकेंगी और न पत्र ही टिकेंगे। आज आप देखो अपने समाज में से ये धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जाती चली जा रही है। हमारे पितृचरण ने हमको आज्ञा की है कि जीवन में कभी महाप्रभु जी कृपा करें ऐसी तो एक पुराण पाठशाला जरूर खोलना। क्यों? आज पुराणों का अध्ययन और पुराणों का अध्यापन भी समाज में से चला गया। आज आपको बहुत स्थानों में बहुत प्रयत्न के बाद वैदिक स्कूल्स और वेदाध्ययन के शिविर और वेदाध्ययन के सत्र फिर भी मिलेंगे, लेकिन आज पुराणों का पठन पाठन लुप्त होता चला गया। कौन कभी विष्णु पुराण पढ़ता दिखता है? कौन पद्म पुराण पढ़ता दिखता है? कौन व्यक्ति है जो गरुड़ पुराण पढ़ता दिखता है? हाँ, गरुड़ पुराण फिर भी तुम्हारे बाप दादा मर जाते हैं तो पीछे से बिठवा देते और एक ब्राह्मण खुद ही खुद पढ़ जाता है, उसी का उद्धार होता रहता है। घर के लोग फिर भी मिलकर ध्यान से गरुड़ पुराण जैसा सूक्ष्म से सूक्ष्म पुराण भी
शांति से धारण नहीं करते, जबकि स्मशान वैराग्य की उस परिस्थिति में तो व्यक्ति को बहुत ध्यान से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। उससे जीवन और मृत्यु के मूलभूत स्वरूप का परिचय अपने को जीते जी होता है। उससे अपनी धार्मिक आस्था, अपनी वेदों में निष्ठा और भगवत चरणारविंद में आसक्ति बढ़ती है। आज यह ब्राह्मणों के रक्षण के विषय में, वेद के रक्षण के विषय में, पुराणों के रक्षण के विषय में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने यहाँ एक आख्यायिका अतिशय प्रसिद्ध है और उस आख्यायिका आज अपने उत्सव नायक के उत्सव पे स्मरण करना अति आवश्यक है। महाप्रभु जी के समय में एक राजा को एक भयंकर रोग हुआ और उस राजा ने रोगग्रस्त अवस्था में अपने कुल पुरोहित से पूछा कि मैंने सारे औषधीय वैद्यकीय उपचार कर लिए परंतु मेरा रोग नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं इस भीषण रोग से मेरी मुक्ति हो, नहीं तो मेरी मृत्यु पास ही है। तो राजा के कुल पुरोहित ने उनको बताया कि राजन, आप एक अपने भार के परिमाण की, आपके जैसी स्वरूप आकृति वाली एक स्वर्ण की मूर्ति बनाओ और उतना तुलन धारण करके जितना आप वजन के हो उतने वजन की वो स्वर्ण प्रतिमा आप प्राण प्रतिष्ठा पूजन आदि करके और उसका दान करो। जब आप वो प्रतिष्ठा का दान करोगे उस प्रतिमा का, तो आपके रोग सारा मुक्त हो जाएगा। तो जब उसका पूरी विधि विधान के साथ उनकी तांत्रिक पद्धति से उन्होंने राजा के समस्त रोगों का उसमें आवाहन करके उसमें उसका प्रतिष्ठापन करके और ब्राह्मणों को एकत्रित किया और ब्राह्मणों का क्या और इसका दान लो, तो एक एक करके जब ब्राह्मण सामने आए तो अपना इतिहास अपने को बताता है कि उस मूर्ति ने हर ब्राह्मण के सामने एक उंगली उठाई। क्या किया उस प्रतिमा ने, उस मूर्ति ने, उस जड़ मूर्ति ने हर ब्राह्मण के सामने एक उंगली उठाई और उंगली उठा के ये उसने कुछ पूछा। ब्राह्मण समझदार थे, हर व्यक्ति ने उसकी एक उंगली देखी और वो दान लेने से पीछे सरक गया। कोई दान लेने नहीं आवे सामने, इतना स्वर्ण सामने धरा है, पर कोई ब्राह्मण, जो तो ब्राह्मण तो स्वर्ण लोभी होता है, वो तो कांचन लोभी है, तो भी उसकी स्थिति ऐसी कि कोई आवे नहीं दान लेने के लिए। तो उस राजा के पुरोहितों में से एक पुरोहित ने श्री महाप्रभु जी की कृष्णदेव राय की सभा अटेंड की, उसमें वो भी था। वो भाग के श्री महाप्रभु जी के पास गए, महाप्रभु जी को जाके विनती की कि राजन महाराज ऐसी परिस्थिति आई है कि हमारे राजा को ऐसा भीषण रोग हुआ है और इसका ये उपचार बताया है, लेकिन ये उपचार करने के लिए जो भी दान लेने ब्राह्मण आता है उसको ऐसा करता है वो काल पुरुष, उसका नाम प्रतिमा का काल पुरुष। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। कोई बात क्या करता है वो, तो बोले एक उंगली उठाता है। महाप्रभु जी ने अपने एक सेवक को बुलाया, उसको तत्काल उसके कान में गायत्री सुनाई और गायत्री सुना के उसको कहा जाओ और तुम जाके दान लेके आओ। वो भी जब दान लेने राजा के पास गया, श्री महाप्रभु जी का सेवक, तो महाप्रभु जी के सेवक को देख के भी उस काल पुरुष ने एक उंगली उठाई। जैसे उसने एक उंगली उठाई तो उसने तीन उंगली उठाई, तीन उंगली उठाई तो उसकी उंगली नीचे हो गई। तो उसने राजा के साथ विधि विधान किया और राजा को कहा कि अब ये काम करो, इस प्रतिमा का खंडन करो और जितने ब्राह्मण हैं उतने सब ब्राह्मणों में ये सब चीज बांट दो। तो उसने कहा दान तो तुमने लिया है, बोले नहीं मुझे मेरे आचार्य की यही आज्ञा हुई है कि दान ले लेना और दान लेके जितने भी उपस्थित ब्राह्मण हो उन सबको ये चीज दान कर देना। तो राजा को तो बड़ा कौतूहल हुआ कि कैसे तो तेजस्वी गुरु हैं और कैसे उन तेजस्वी गुरु का ये परम पराक्रमी शिष्य है, इतना स्वर्ण दान भी लिया और उसमें से उसने लिया भी, परिग्रह भी नहीं किया। तो कहा अपन को तो ऐसे गुरु के चरणारविंद में चलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या बात। वो राजा पूरे परिकर पूरे मंडल को लेके ब्राह्मणों समेत महाप्रभु जी के चरणारविंद में आया, दंडवत करके पहले तो धन्यवाद दिया कि आपके आशीर्वाद से मुझे आरोग्य और आयुष्य दोनों प्राप्त हुई, पर कृपा करके रहस्य बताओ कि ये क्या था, एक उंगली का उठाना और तीन उंगली का उठाना। तो महाप्रभु जी आज से 540 साल पहले यह बात आज्ञा करते हैं कि उस काल पुरुष रूपी ब्राह्मण ने पूछा अन्य ब्राह्मणों से कि एक समय की संध्या भी करते हो क्या, एक समय की भी गायत्री जपते हो क्या तुम? तो जो महाप्रभु जी का सेवक था उसने कहा हम जिनके सेवक हैं वो त्रिकाल संध्या परायण व्यक्ति हैं और हम सब त्रिकाल संध्या करते हैं।
मतलब हम वैदिक धर्म में इतने निष्ठ हैं कि संध्या जो ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का मूल है उसमें हमारी श्रद्धा टिकी हुई है, उसमें हमारी आस्था विराज रही है। तो महाप्रभु जी ने कहा, मेरे सेवक ने सिर्फ उसको कहा कि नहीं हम तो 3-3 संध्या करते हैं, तो हमारे पास गायत्री का बैंक बैलेंस इतना है कि हम तुम्हारा ये स्वर्ण बैलेंस ले सकते। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु जी की ये पूरी आख्यायिका अपने को ये बताती है कि संध्या, हवन, तर्पण, मार्जन, उपस्थान, गायत्री जप, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि, अनुष्ठान विधि, पूजन आदि, अर्चन भक्ति, इन सब वैदिक प्रकारों में अपनी दृढ़तम निष्ठा होनी चाहिए। और जिन त्रैवर्णिकों को ये प्राप्त नहीं है उनके यही सब कर्मों को सिद्ध ब्राह्मण करवाते हैं। इसलिए अपना हित विचारने वाले अपने पुरोहित में अपनी श्रद्धा होनी, अपनी ब्राह्मणों के प्रति एक अलग ही बुद्धि होनी चाहिए कि अपन उनको थोड़े आदृत भाव से, पूज्य भाव से देखें। हर ब्राह्मण को भिक्षुक के रूप में न देखें, ये कुछ मांगने आया है कि हमसे ये कुछ चाहता है, ऐसे रूप में नहीं देखें। क्योंकि ब्राह्मण को आप जब भी नमस्कार करोगे उसके मुख से कल्याण वस्तु ही निकलेगा। आप उसको कुछ दो न दो, आप उसको सम्मान दोगे तो उसको आशीर्वाद ही निकलेगा। और ब्राह्मण द्वेषी का कभी हित नहीं हो सकता। भगवान के ऊपर जब अभिचार प्रयोग सुदक्षिण नाम के काशी नरेश के पुत्र ने किया और उस समय महादेव जी स्वयं यज्ञ कुंड में प्रकट हुए और महादेव जी ने कहा कि तुम ये अभिचार प्रयोग कर तो रहे हो पर अब्रह्मण्य प्रयोजित, किसी ऐसे व्यक्ति पे प्रयोग करना कि जो ब्राह्मण द्वेषी हो, ब्राह्मण भक्त न हो। और उसने क्या किया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसने तो उस गोविंद पे किया जो ब्राह्मण भक्त ही नहीं, ब्राह्मणों के देवता हैं और स्वयं ब्रह्मण्य देव हैं, गौ भक्त हैं, गौ ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं। आप ऐसे पे उसने प्रयोग किया। उसके प्रयोग से समग्र उसका परिवार, उसके आचार्य, उसके पुरोहित, उसकी राज्य भवन और पूरी नगरी काशी, यदि और श्री महाप्रभु जी को नाम लिखना पड़ा कि काशी निदाह करना च शिव भस्म प्रदायक। ठाकुर जी ने तो फिर ऐसी लीला रची कि महादेव जी को भस्म प्रिय तो पूरे काशी को जला दी ताकि भगवान विश्वेश्वर का भस्माभिषेक किया जा सके। कहने का मेरा तात्पर्य है ब्राह्मण भक्त होना अपन लोगों के लिए परम आवश्यक है। आज हम आचार्यों में भी एक ब्राह्मण विराज रहा है, हमारे घर के इतर कर्मचारियों में भी कर्मचारी वो भले हैं, वो मुखिया, भीतरिया, खवास, अलग अलग पोस्ट के लोग हैं। आज अपने यहाँ उन सबों को श्री जी के घर में बावा कह के संबोधित किया जाता है। मुखिया बावा, सागरिया बावा, फुलगरिया बावा। बावा शब्द हमेशा प्रेम का प्रतीक है और प्रेम, आदर, भाव इन सबों से ऊपर की वस्तु। अगर प्रेम होगा तो सहज आदर आएगा, सहज अपने को निष्ठा प्रकट होगी। तो मेरा आज यही उपदेश है, हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर व्यक्ति के प्रति आदृत भाव रखो। अरे हमारी गौरवशाली संस्कृति को देखो, हम वृक्षों का पूजन करते हैं, हम पृथ्वी का पूजन करते हैं, हम पर्वतों का पूजन करते हैं, नदियों का पूजन करते हैं, हम एक दूसरे का पूजन करते हैं, माता पिता का पूजन करते हैं, भाइयों का पूजन करते हैं, भाई बहन एक दूसरे का पूजन करते हैं। हमारी पूज्य पूजक के संबंध के ही सारे संबंधों की अपनी संस्कृति है। अपनी इस गौरवशाली संस्कृति में अपना हित विचारने वाले ब्राह्मणों के प्रति भी हमको एक आदर भाव, पूज्य भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो धर्म के रक्षण में सबसे पहला वर्ण है कि जो धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध, कृत संकल्प। और ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व की शिथिलता देखो तो आप वैश्यों को और क्षत्रियों को, जिनको द्विजबंधु कहा गया है, आप द्विजबंधुओं को उनको प्रेरित करना चाहिए कि तुम सब करो, व्यवसाय करो, व्यापार करो, सब करो, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व का रक्षण भी करो। इतना उपदेश तो हर पुष्टिमार्ग की वैष्णव को भी एक ब्राह्मण को देना चाहिए कि अपने ब्राह्मणत्व का त्याग मत करो, क्योंकि तुम्हारे में उससे एक आदृत और पूज्य भाव आता है। महाप्रभु जी के अलग अलग उत्सवों पे अपन अलग अलग विषयों पे यहाँ व्याख्यान रखते हैं, कभी किसी चीज पे प्रकाश करते हैं, कभी किसी चीज पे प्रकाश करते हैं। इसलिए आज मेरा मन हुआ कि आप सबों को मैं ये चीज का आज संबोधन यहाँ से करूं, इस चीज का उपदेश करूं कि आप सब लोगों का एक बहुत ही पूज्य और आदर भाव से ही दर्शन करिए। आज जय श्री कृष्ण की जो अपनी परंपरा वैष्णवों में आपस में है कि अपन एक दूसरे को देख के
जय श्री कृष्ण नामोच्चारण ठाकुर जी का करते हैं, वो भी एक दूसरे में विराजमान 252-84 वैष्णव का पूजन ही है। इसलिए उन भावनाओं से, उन अपनी गरिमावान भावनाओं से हर वैष्णव एक दूसरे से सप्रेम जय श्री कृष्ण नामोच्चारण करे, एक दूसरे को नमस्कार करके मिले और एक दूसरे के प्रति एक बांधवत्व, एक बंधुता, फेलोशिप जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस चीज के साथ एक सहज प्रेम से मिले। किसी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो लेना देना है वो भगवत नाम का आदान प्रदान है, जिससे अपन सबकी भगवत भाव और भगवत भक्ति अपनी फलवती बने और बलवती बने। इसलिए आज के श्री महाप्रभु जी उत्सव के 540वें प्राकट्य महामहोत्सव में आचार्य आसन से पूज्य पितृचरण के आदि से मैं आप लोगों को यही उपदेश देना चाहूंगा कि आप वर्णाश्रम धर्म का सम्मान करें। हर व्यक्ति जो जिस वर्ण में जन्मा है, वैश्य है तो भी उसकी परिपूर्ण आवश्यकता है, अगर ब्राह्मण है तो भी उसकी पूर्ण आवश्यकता है, क्षत्रिय है तो उसके छात्र धर्म की भी समाज को उतनी आवश्यकता है, और यदि शूद्र है तो उसके सेवा धर्म बिना भी समाज चल नहीं सकता। ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य तद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। आज भगवान विराट के स्वरूप में ब्राह्मणों की उत्पत्ति ठाकुर जी के मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान विराट पुरुष के भुजाओं में से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति ठाकुर जी के उदर पेट में से हुई है, और भगवान के चरण में से हरिजनों की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज आप जितने भी यहाँ पे वणिक और वैश्य वर्ग के लोग हो, आप ये चीज देखो कि अगर आप पेट मतलब उदर वैश्य ही संतुष्ट, समृद्ध, सशक्त नहीं होगा तो वो कैसे त्रैवर्णिकों का, इतर त्रैवर्णिकों का वो पालन करेगा। ब्राह्मणों को दक्षिणा तो वैश्य को देनी है, राजाओं को कर टैक्स तो वैश्यों को देना है, शूद्रों को वेतन तो वैश्यों को देना है। तो हमारे यहाँ के वैश्य वर्ग को सबसे ज्यादा धर्म प्राण, सबल, सशक्त और धनाढ्य होने की आवश्यकता है, जिससे वो धर्म की रक्षा करते हैं। मैं आज वापिस ये बात कहना चाहूंगा कि आज अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में अपने यहाँ केसरी उपरना ओढ़ा के, केसरी इकलाई ओढ़ा के सम्मान करने की परंपरा इसीलिए है ताकि हर वैष्णव को बोध कराया जा सके कि तुम अपने आप में वैष्णव सिंह, वैष्णव केसरी हो। तो आज आप सबों के अंदर विराजमान मैं वैष्णव धर्म के उस सिंह को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप सब अपने स्वरूप को पहचाने, कि आप अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के संपूर्ण अंग हो। तो आपके अंदर कोई प्रकार की अपूर्णता नहीं है जिससे आप में कोई भी प्रकार की धर्म भीरुता या केवल भीरुता आदि प्राप्त हो। आप सब अमृतस्य पुत्रा वयम, अपन सब अमृत की संतान है, अपन सब प्रभु के अंग और अंश हैं। तो अपन को अपने भगवदंशी होने का, अंशी के उस भगवदंश होने का अपने को आत्म गौरव होना चाहिए, जिसके माध्यम से अपना भगवत संबंध होता है। तो आज पुनश्च श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई सहित आप सभी लोगों को सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथ्वी सस्यशालिनी। लोकोऽयं शोभरहितो। ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अधना सधना सन्तु, सदना सन्तु पुत्रिणा, पुत्रिणा पौत्रिणः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। आप सब चिरायुष्मान हो और आप शतायुषी होते हुए एक एक वर्ष के साथ अपनी भगवत भक्ति को और बढ़ाएं। भगवत सेवा, भगवत नाम परायण हो और भगवत सेवा के साथ गुरु सेवा और ब्राह्मण रक्षा में भी, ब्राह्मणत्व वेद रक्षा में भी आप सब सबल बने। ऐसे सहस्त्रशः आप सबको शुभाशीष के साथ મહાપ્રભુજીનો પ્રથમ ચિત્ર કોને અંકિત કર્યું? હા, હોનહાર ચિત્રકારે શ્રી મહાપ્રભુજીથી પ્રભાવિત થઈ દિલ્હીનો
પાછા સિકંદર લોધીએ એના ચિત્રકાર હોનહારને શ્રી મહાપ્રભુજીનું આબેહૂબ ચિત્ર તૈયાર કરી લાવવાની આજ્ઞા કરી. હોનહારને મન તો રમતવાળ હતી, કારણ કે તે સિદ્ધ હસ્ત કલાકાર હતો. તે ગોકુલ આવ્યો એ સમયે શ્રી વલ્લભપ્રભુ ઠકુરાની ઘાટ ઉપર બિરાજ્યા હતા. ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતજી ઉપર ટીકા લખાવી રહ્યા હતા. હોનહારને તો અભિમાન હતું કે પોતે આબેહૂબ ચિત્ર દોરી શકે છે, પરંતુ આજે તે ચિત્ર દોરવા પ્રયત્ન કરે છે પણ દોરી શકતો નથી. પછી તે શ્રી વલ્લભના ચરણમાં નમી પડ્યા અને પછી શ્રી વલ્લભની કૃપાથી સુંદર ચિત્ર દોરી શક્યા. આજે આ ચિત્ર કિશનગઢના રાજમહેલના મંદિરમાં બિરાજે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં અહંકારને તો સ્થાન જ નથી. આખરે જ્યારે હોનહાર નમ્યા ત્યારે પ્રભુ કૃપા થઈ અને એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચિત્ર દોરી શક્યો. આ તો માત્ર એક ઉદાહરણ છે. આવી રીતે દીનતાની મહત્તાને સમજાવવા આવશે આપણી વિદ્યાર્થીની વંશી રાયઠઠ્ઠા, જેમના માર્ગદર્શક છે આપણા અધ્યાપિકા રુચિતા ગાંધી અને કૃષ્ણાબેન રાધડિયા. પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોવિંદરાયજી મહોદયની શિષ્ય હું વંશી રાયઠઠ્ઠા આજે આપ સૌને દીનતા વિષય પર વક્તવ્ય આપે. સર્વપ્રથમ તો દીનતા એટલે દાસ ભાવ, સેવકનો ભાવ. વૈષ્ણવ હંમેશા દાસ ભાવ રાખવો જોઈએ, અહંકાર ક્યારેય ન કરવો જોઈએ. પ્રભુને પામવા માટેનો જો કોઈ સાધન છે તો તે છે દીનતા. ભક્તનો દાસભાવ એટલો પ્રબળ છે કે તે શ્રીનાથજીને પણ પ્રગટ થવા માટે વિવશ કરી દે છે. નહીં સાધન સંપત્યા હરિ દૃશ્યતિ કશ્ચન ભક્ત્યાનામદેન્ય મેવેકમ હરિ સંતોષકાન. શ્રી હરિ સાધન સંપત્તિના સમર્પણથી એટલા સંતુષ્ટ નથી જેટલો ભક્તનો રહેલો દાસભાવ શ્રી હરિને સંતોષ આપે છે. ચિંતાનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન આપણા માર્ગમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનો સ્વયંનો છે. આથી ઠાકોરજી, શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી વલ્લભના અવતાર રૂપ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ થઈને પણ પોતાને દાસ બનાવે છે. તેઓએ પોતાના ઘર સોરષ્ટ્રમાના અંતઃકરણ પ્રબોધમાં આજ્ઞા કરી છે. ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતવત. એટલે કે હું શ્રી કૃષ્ણનો દાસ વલ્લભ તમને ઉપદેશ આપું છું કે સદા હું શ્રી કૃષ્ણનો દાસ છું. તેવો ગર્વ પ્રત્યે વૈષ્ણવમાં માત્રનું ધન છે, કારણ કે પ્રદાસવ જેવા પુષ્ટિ ભક્તને ભગવત દર્શન થયા પછી પણ તે પોતાને પ્રભુના દાસનો પણ દાસ ગણે છે. આ કયો દાસાનો ભાવ? અહમ હરે તવ પાદયોગો મૂળ દાસાનો દાસો ભાવિતાશ્રી ભૂયઃ. એટલે કે હે પ્રભુ, મારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે સદા હું આપના દાસનો પણ દાસ થાઉં. આ જ ભાવના પુષ્ટિ માર્ગમાં રહેલી સાચી દીનતા છે. આ સાથે હું મારો વક્તવ્ય મારા ગુરુ ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરું છું. શ્રી પાઠશાલાના ચાલી રહ્યા 3 દિવસીય વાર્ષિક મહોત્સવમાં આપેલા સહકાર બદલ સૌથી પહેલા તો હું આપ સૌનો હૃદય સહિત આભાર માનું છું. આજના સુંદર પરમ મંગલ દિવસે આપ શ્રીના યશોગાનથી ખૂબ જ પ્રસન્નતા અનુભવાય છે. રમત ગમતમાં કહેવાય છે ને કે જીતી ગયા ભાઈ જીતી ગયા, રમનારા સૌ જીતી ગયા, હારી ગયા ભાઈ હારી ગયા, ઘેર બેઠા તે સૌ હારી ગયા. એ જ રીતે આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનારા, સ્ટેજ ઉપર આવી હિંમતપૂર્વક પોતાની રજૂઆત કરનાર પ્રત્યેક બાળકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ. છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે ત્યાં એક વાત પ્રચલિત હતી કે હવેની પેઢી ધર્મમાં રસ લેતી નથી, યુવાનોમાં ઉત્સાહનો અભાવ છે. પણ આપણે જ્યારે કાર્યક્રમ આપીએ છીએ ત્યારે આ લોકો રસ જરૂર લે જ છે. ગત 3 દિવસથી આપણને આ બતાવી જ રહ્યા છે કે જો આપણે બાળકો સામે કંઈ મૂકીએ તો જરૂર આપણા બાળકો તૈયાર જ છે. આ બધા બાળકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, વધાઈ અને શુભકામના. ખાસ કરીને એમના પરિવારજનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, જેમણે પોતાના બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે અને આજે એની બહુ જ આવશ્યકતા છે. આપણે આપણા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરીએ અને તેમને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનું, આપણા સંપ્રદાયનું પ્રાથમિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, આપણા સંપ્રદાયની વિવિધ કળાઓથી તેઓ પરિચિત થાય તેવા પ્રયત્ન કરીએ. તો એ બદલ આપ સૌ વાલીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજનો સમય એટલે દક્ષિણની દિશા
અને આપણા પ્રાચીન રિવાજો એટલે ઉત્તરની દિશા, એ બંનેને ભેગા કરવા એ ખરેખર બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે. પણ ઉત્તર અને દક્ષિણને મોટાઓ જ એક કરી શકે છે. એમ આપણે ત્યાં પણ અહીં બિરાજમાન શ્રી વલ્લભકુલ પરિવાર, પૂજ્ય અંબાજી, પૂજ્ય શ્રી ગોવિંદરાયજી મહોદય શ્રી ની અધ્યક્ષતા તથા બાલબોધિની પાઠશાલા વાપીના પ્રધાન અધ્યાપિકા પૂજ્ય રાણી બહુજી શ્રીની કૃપાથી આ શક્ય બન્યું છે. શ્રી વલ્લભાધીશ જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણીજી જય. અને છેલ્લે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા બદલ સૌ સ્પર્ધકો, તેમના વડીલો, પાઠશાલાના સંચાલિત ભાઈ બહેનો, મહેમાનો, ઉપસ્થિત શ્રોતાગણ, શોભા સમિતિ અને આયોજકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આજના આપણા મંચ સંચાલક જે આપણા પાઠશાલાના જ બાળકો છે, ખુશ વિઠલાની અને ગોરલ પટેલ, એમને પણ હું મારા હૃદયથી અભિનંદન આપું છું. આ વખતે જે વૈષ્ણવ આજે આવ્યા છે એમને કહી દઉં કે મંચ સંચાલક થી લઈ અને બધા કાર્યક્રમો, નાટક, નાટિકા, વક્તવ્ય, નૃત્ય, કીર્તન બધું જ બાળકો દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. અમે લોકો ખાલી એમને માર્ગદર્શન જ આપ્યું છે, બાકી બધો પ્રયત્ન બાળકોનો જ છે. એમાં ગત 3 વર્ષથી ભણનારા દરેક બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. અત્યારે જે પાઠશાલામાં ભણે છે એ બાળકોનો પણ અને જે ભણી ચૂક્યા છે એમનો પણ. બાળકો 10th અને 12th ની એક્ઝામ હોવા છતાં પણ અમારા એક ફોન કોલથી અહીંયા આવી અને પ્રેક્ટિસમાં આવ્યા છે. તો આપણા સંપ્રદાય માટે જે હંમેશા આગ્રહ રાખે છે, વક્તવ્ય કરાવે છે, આગ્રહ રાખે છે કે યુવા પેઢી તૈયાર થાય, આજની પેઢી તૈયાર થાય, એ આપણા આ બાળકો અત્યારે સિદ્ધ કરીને બતાવે છે. બધા બાળકો માટે એકવાર ખૂબ જોરદાર તાળી. અહીં હું મારા આપ સૌને ભગવત સ્મરણ કરીને મારા વક્તવ્યને પૂજ્ય ગુરુચરણોમાં વિરામ આપું છું. તો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ હોય અને નન મહોત્સવ ના હોય એ કેવી રીતે ચાલે? તો આવો અમે બધા પાઠશાલાના બાળકો મળીને તમને સૌને આજે ચંપારણ્ય ધામ લઈ જઈએ. થોડી વાર માટે આપણે ભૂલી જઈએ કે આપણે વાપીમાં છીએ અને મનથી વિચારીએ કે આપણે ચંપારણ્ય ધામમાં બાલ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભના દર્શન કરી રહ્યા છીએ. સાથે શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી, ઇલ્લમ્મા ગારુજી, નંદબાવા યશોદા મૈયા તથા સમસ્ત બ્રજના ગ્વાલબાલો અને ગોપીઓ મળીને શ્રી અગ્નિકુંડમાં બિરાજતા બાલ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભના પ્રાગટ્યની વધાઈ ગાઈ રહ્યા છીએ. તો હવે પાઠશાલાના બાળકો બધાઈ લઈને નાચતા કૂદતા આવી રહ્યા છે. આજે વધામણારે ચંપારણ્ય ગામ.
Yeah.
બધાનો આશ્રય ભગવદ આશ્રય બન્યું રહે અને એના સાથે જ આપણે આ સભાને અહીંયા વિરામ આપશું, સંપૂર્ણ કરશું અને ઠાકોરજીને દર્શન કરી મહાપ્રસાદ માટે આપણે પ્રયાણ કરશું। તો એટલે આરતીની રાહ નહીં જોતા, બીજા ત્રીજા પદમાં આરતી થશે, દર્શન કરીને સીધા આપ લોકો વલ્લભાશ્રય પધારજો। તો મહાપ્રભુજીના આશ્રયમાં કણિકાનો આનંદ આપણે લઈએ બધા। नित्य प्रति मदन गोपाल के चरण कमल चित तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में गई रसिका प्रीतम हित गिरधारी जिसो कई करे ऋषि गोवर्धन की रही चढ़ई साधन नहीं कहीं में